नहीं हो सकता। हाँ बाकी सारे उच्चा है। ठेके तो लैके जी मड़िया सड़क जाती आ सीधा कबरों जी सड़क वो सड़क तो लैके तो भुल्लर कलोनी के गेट तक सड़क तक ये पैप नीवे उच्चे किए जान तो अपने आप पानी का मसला हल हो जाता। पहला ये पानी जो मड़िया जाता है टोए च उदों पानी लीक नहीं गा। सर मॉडर्न स्टेट ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਮੋਡਰਨ ਸਟੇਟ ਉੱਚਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂ ਮੋਡਰਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਮੋਡਰਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨੀਵੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪੇ ਆਪਣਾ ਲੈਂਟਰ ਚੁੱਕਣ ਨਾ ਚੁੱਕਣ ਸੜਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਸੜਕ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੋਡਰਨ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ। ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਉਹ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਇਹ 4 ਗਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਲਾ ਇਦਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਪੈਪ ਉੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਿਹੇਵ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਿਹੇਵ ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਡਾਕਟਰ ਮਨੀਸ਼ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਰ ਉਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੋਟੋਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021-22 ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉਧਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰ ਮੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਆ। ਬੰਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕਲੋਨੀ ਮੋਡਰਨ ਸਟੇਟ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਧਰੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾ ਲੀਆਂ। ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਠੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਠੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪੇ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਪੈਪ ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਗੱਗ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੱਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਨੰਗਲ ਸ਼ਾਮੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਈਵਨ ਰਾਮ ਮੰਡੀ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨੀਵਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਪੰਪ ਲੱਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਗਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਾੜੀ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨੰਗਲ ਸਾਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਗਲੀ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਆ ਅਰਮਾਨ ਨਗਰ ਸਾਡਾ ਨੰਗਲ ਸਾਮਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਰਮਾਨ ਨਗਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸਰ। ਇਹ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਕੋਲ? ਨਾਲ ਅਰਮਾਨ ਨਗਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਅਰਮਾਨ ਨਗਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਅਰਮਾਨ ਨਗਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅਰਮਾਨ ਨਗਰ 1 2 3 4 5 6 ਗਲੀਆਂ 1 2 3 4 5 ਨੰਬਰ ਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੌਕਾ। ਆ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਅਰਮਾਨ ਨਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਤੱਕ। ਸਰ ਇਸ ਗਲੀ ਚੋਂ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਅਰਮਾਨ ਨਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੁਣ ਤੇ ਲੋ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਲੋਨੀ ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਲੋਨੀ ਅਰਮਾਨ ਨਗਰ ਅਪਰੂਵਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਜੋੜਤਾ। ਉਹ ਹੈਗੇ ਸੀਵਰੇਜ ਉੱਚੇ। ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਉੱਚਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਐ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਲੀਕ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲ ਗਿਆ। ਬਸ ਆ ਚੱਕਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚੇ ਸਿਰਫ 100 ਮੀਟਰ ਪਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਫੇਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸਰ 100 ਮੀਟਰ ਪੈਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪੈਪ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ 5-7 ਪੈਪ 4 ਟੈਂਕੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕੀ ਨਾ ਹੌਜੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਉੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਨਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਪਵੇ ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਜੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਵੱਡੇ ਪੈਪ ਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਤਾਂ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣ ਪਾਣੀ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਮਲਜੀਤ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਨੰਗਲ ਜਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਮੋਟਰ ਲਾਉਣ ਪਾਈਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਮਤਲਬ ਇੰਜਣ ਜਾਂ ਐਨੀ ਵਨ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ ਇੱਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਘਟੂਗਾ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਮੇਨ ਰੋਡ ਆ ਸਾਰੀ ਦਕੋਏ ਦੀ ਅਰਮਾਨ ਨਗਰ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤੱਲਣ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਨ। ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕਿਉਂ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ।
ਭੁੱਲਰ ਕਲੋਨੀ ਪਾਸਾ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫੀ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਸਿਰਫ ਧਰਨਾ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਸੀਵਰ ਦੇ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵਾਂਗੇ। 4 ਵਾਰੀ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਜਦੋਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾ ਜਰਾ, ਤੇ 5 ਵਾਰੀ ਅਮਰ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਐਮਐਲਏ ਇੱਧਰ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ, ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੜਿਆ, 1 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਮੋਰਨ ਸਟੇਟ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਹੀ ਸਵੇਰੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਅੱਜ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ किस तरीके ने दिने वोटां। दोस्तों आज हम आए हैं वार्ड नंबर 12 के काउंसलर श्री जगदीश कुमार दुगवा जी के पास। एरिया में बहुत सी समस्याएं हैं हमारे पास यहाँ पर, जो इस समय चल रहा है। यहाँ पर सीवरेज की समस्या बहुत ही गहन रूप लेती जा रही है, लोगों को निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। जैसा कि आपने देखा कि गलियों में पानी भरा हुआ है, सड़कों पर पानी आ गया और लोग परेशान हो रहे हैं। कई बार शिकायतें भी लगाई, जैसा कि लोगों का कहना है कि हमने बहुत सी शिकायतें लगाई हैं, कारपोरेशन में भी की है, मेयर को भी करी है शिकायत, इवन के एमएलए साहब को भी शिकायत करी, परंतु किसी ने कोई सुनवाई नहीं दी। परंतु हमारी जो गग साहब से बात हुई, उन्होंने इसके मेन मुद्दे पर हमें बताया कि क्या समस्या है और क्या इसका हल निकल सकता है। आइए हम उनसे बात कर सकते हैं। कैसे गग साहब? ठीक है, आपने बड़ी अच्छी बात करी है कि सीवरेज की समस्या तो वाकई बहुत ज़्यादा है। ऐसा मैंने मेरी 30 साल की सर्विस हो गई है कॉरपोरेशन में, 30 साल से मैं कॉरपोरेशन में काम कर रहा हूँ, लेकिन आज तक सीवर की समस्या कभी भी नहीं आई जितनी अब आ रही है 2 साल से 3 साल से। ऐसा है कि सीवर हमने 2007 में एक मास्टर प्लान बनाया था, जिसमें रामा मंडी से लेके धंधोवाली तक 2.5 फुट डूंगा सीवर, यानी 2.5 फुट गोल सीवर जिसको बोलते हैं डार्ट सीवर, वो धनोवाली तक जाना था। तो 2007 में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रकाश सिंह बादल जी का राज था। उन्होंने उस समय मुझे भी दिया 20 लाख रुपया सीवर डलवाने के लिए। मैंने रामा मंडी से लेके दुकोए तक डलवा दिया। फिर उन्होंने अपनी सरकार में अपने लोगों को जलंधर के लिए 20 करोड़ रुपये दिए कि जहाँ जहाँ भी सीवर डलना है बड़ा, वहाँ बड़ा सीवर डालिए। लेकिन जब सीवर डालने की बारी आई, अकाली दल का राज था, अकाली दल का काउंसलर था, उन्होंने क्या किया, बजाय डार्ट सीवर, क्योंकि डार्ट सीवर जो है वो स्लो डलता है, उस पर समय लगता है, तो उन्होंने कहा कि चलो पैसे खर्च करने हैं, फटाफट इसको पाइप सीवर डाल देते हैं। और ये जो कॉलोनियाँ 2-3 नई बनी है ना, मॉडर्न सेट, भुल्लर कॉलोनी और सिद्धू निकले, इनको अटैच कर देंगे, चलो वोटें ले लेंगे, बटोर लेंगे यहाँ से। दूसरे नंबर पे इन्होंने ये भी कहा कि धनवाली में भी डाल देते हैं, पैसे तो हैं ही, 20 करोड़ रुपया को थोड़ा थोड़ी होता है, पैसे तो हैं ही। इन्होंने धनवाली में भी सीवर सारा डाल दिया। उस समय तो कोई धनवाली वाला बोला नहीं। 10 साल लगातार सीवर वहाँ बंद रहा, किसी ने चलाया नहीं, क्योंकि वहाँ पानी का निकास तो है ही नहीं था। 10 साल जब सीवर पूरा जाम हो गया, फिर दोबारा कांग्रेस का राज आया। तो उस समय क्या किया कि इन्होंने सोचा कि चलो शाहपुर लाइन तक तो सीवर है ही है, पाइप सीवर, उसमें डाल देते हैं धनवाली का पानी। अरे भैया, कहाँ 2.5 फुट चौड़ा सीवर और कहाँ 16 इंच चौड़ा सीवर, कितना फ़र्क है। अगर 2.5 फुट वाला सीवर उस टाइम चले जाता वहाँ तक, तो जिंदगी भर के लिए धनवाली क्या सारे आले दुआले का जो इलाका है, कभी सीवर की समस्या नहीं आती। ये सिर्फ बात मैं जानता हूँ। मैंने बड़ा शोर मचाया, बड़ा हल्ला किया,
मेरा हल्ला करने के बाद मौके की सरकार ने 3-4 अफसरों को भी बदल दिया, यहाँ से बदल के हाँ लुधियाने में भेज दिया, इधर भेज दिया, उधर भेज दिया। आप बहुत बोलते हो, आप उसकी बात मानते हो। ये जो सीवर हम डाल रहे हैं ठीक डाल रहे हैं, अपने आप पानी लगा। धनवाली को हम सतलुज के साथ जोड़ देंगे। इनसे ये पूछे, अगर हम दकोए के साथ जोड़ नहीं सकते तो वहाँ सतलुज के साथ क्या जोड़ देंगे। उस समय में 2007 में इन्होंने एक नया सतलुज एक्शन प्लान बनाया। बेशक आप जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। इस बात के बारे में मैंने बड़ी चर्चा करी अपने अफसर से कि ये गलत काम हो रहा है। ये डार्ट सीवर जो है ना, धनवाली तक जाने दो, टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन सारी ज़िंदगी धनवाली, सारी कॉलोनियाँ, सारा दुकोआ सब ठीक रहेंगे, लेकिन हमारी कोई बात नहीं मानी गई। कालियों का काउंसलर था, उनका ये राज था, उन्होंने ठोक दिया सीवर। अब जब 10 साल के बाद सीवर भरने लगा धनवाली का, लोगों ने अपनी मर्जी से जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो सीवर का आगे निकास तो कोई था ही नहीं, तो फिर बाहर ही आना था ना। मट्टी भर गई, उसमें 10 साल बांधी रहा, तब तो धनवाली वाला कोई बोला नहीं। फिर जब जसर साहब हमारे वहाँ काउंसलर बन गए, उन्होंने बातचीत करी तो सीवर्स बोर्ड ने एक फ़ैसला किया, चलो जहाँ डार्ट सीवर डला हुआ है वहाँ एक स्पेशल पाइप डाल देते 8 इंच का, 10 इंच का, चलो वहाँ तक पानी हम थोड़ा थोड़ा निकाल दिया करेंगे। ये एक टेम्परेरी डिस्पोजल धनवाली में बनाई गई थी भी, थोड़ा बहुत पानी इधर निकाल देंगे, बाकी थोड़ा बहुत पानी जो है छप्पड़ों में डाल देंगे। धनवाली में 2 छप्पड़ हैं, अगर वो चाहें तो वो छप्पड़ों को ठीक करवा के, डूंगा करवा के, वहाँ टेम्परेरी इंजन लगवा के पानी फिकवा सकते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि हमारा गांव बिल्कुल साफ हो जाए और आगे वाला गांव जो डूब जाए। मेरे इलेक्शन से 2 साल पहले जब ये आम आदमी सरकार आई है तो बुल्लर कोने वाली सड़क टूट गई। चलो ठीक है, लुक की बनी हुई सड़क थी, पानी से तो टूट रही थी, पानी आ गया, हमारा बड़ा मजाक उड़ाया गया, बहुत कुछ हमें कहा गया, हम यहाँ बतखें घुमा देंगे, बतखें यहाँ फिरेंगी पानी में, ऐसे बतखें फिरेंगी। तो हमने कहा ठीक है भाई, जैसे आप कहते हो। बाकी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस सड़क को दोबारा सीमेंट की बना दूंगा। फिर मैंने 50 लाख रुपए लगाया, होशियारपुर फाटक से लेके ग्वाला कॉलोनी तक पूरी सीमेंट की मैंने सड़क बनवा दी और बड़ा अच्छा काम चलता रहा। जो टेम्पररी डिस्पोजल बनाई थी उसको भी सिर्फ 2-2.5 घंटे चलाया जाता था। अब धनवाली की आबादी इतनी बढ़ गई है, ट्यूबवेल को ज़्यादा चलाते हैं। जब तुम ट्यूबवेल ज़्यादा चलाओगे पानी तो आएगा ना, जब पानी ज़्यादा आएगा तो सीवर के बाहर भी आएगा वो। फिर आप कहोगे कि हम सारा सीवर उस मोटर से खींच के दकोए में डाल दें, तो फिर दकोआ डूब जाएगा। चाहे धनवाली बचा लो, चाहे दकोआ बचा लो। डॉक्टर साहब, पहले आपने मुझे बताया था कि जो नंगल शामे के पास प्लांट है वहाँ पे थोड़ा ऊंचे नीचे का चक्कर है, वो भी बात बताऊंगा मैं, वो भी बात बताऊंगा। तो आज से 6 महीने पहले मैंने एक नए कमिश्नर आए थे, बड़े समझदार थे, वो बठंडा में डीसी थे, तो यहाँ लगे थे। मैंने उनसे बात करी, उनको सारी बात मैंने समझाई, उनके दिमाग में जो बात बैठ गई। उन्होंने जितने सीनियर ऑफिसर थे सब बुला लिए, बुला के बोला भी इनकी बात समझो, ये जो कह रहे हैं कि सीवर वहाँ गलत डाला गया है उसको ठीक करवाओ। ठीक वो सीवर नहीं हो सकता। तो मैंने उनको ये प्रपोजल दी कि आप नंगल शमा में एक टेम्परेरी डिस्पोजल और बना दो, कोई खास खर्च नहीं आएगा। वो जो पानी वहाँ का रुक जाता ना, आधा पानी चला जाता, आधा पानी पीछे रह जाता है। वो पीछे क्यों रहता है कि सीवर अप एंड डाउन है, उधर का सीवर ऊंचा है, इधर का सीवर नीवा है। गलत डाला गया है, सारी गलती सीवर बोर्ड की है।
लेकिन जो थोपी जा रही है कॉरपोरेशन के ऊपर थोपी जा रही है। लेकिन उस समय तो कोई बोला नहीं, क्योंकि किसी का कोई ध्यान ही नहीं है इस काम में। ये टेक्निकल बातें हैं, वही जानता है जो काम करता, हाथ से करता है, जो करता रहता है, या जिसको कोई नॉलेज है। तो मैंने उनको बोला कि यहाँ बना दें, साहब मान गए, कहते बना दो जी, बिल्कुल ठीक है। वहाँ से पंप आउट करेंगे, जितना पानी होगा वो सारा पीछे खाली हो जाएगा। इन्होंने फिर नहीं बनाया, फिर चुप कर गए, बात करी फिर चुप कर गए, फिर मैं भी चुप कर गया। अब आप ही बताइए कि जो सीवर चलता है धन्नोवाली का, जब वो चलेगा 8 घंटे, तो पानी तो दुकोआ तो सारा डूबेगा ना, वो खाली हो जाएगा, वो खाली हो जाएगा, ये डूब जाएगा। तो ये बात मैं कुछ दिन से सोच रहा था कि अपने मानयोग एमएलए साहब के पास जाऊं, श्री रमन अरोड़ा जी के पास जाऊं, उनसे बैठ के बात करूं, विचार वटांदरा करूं कि ये जो काम धन्नोवाली वाले आपको बता रहे हैं सारा गलत करवा रहे हैं आपसे काम। ये आपसे काम ठीक नहीं करवा रहे। ये अपना घर तो आपसे करवा लेंगे सफाई, लेकिन आगे भी तो दुकोआ घर आपका ही है ना, दुकोआ गांव भी आपका है, रामा मंडी भी आपका है, आप हमारे एमएलए हैं, तो आप बात तो सारी आप पर ही आएगी ना। तो आप उसका सिस्टम चेंज करने के लिए जो धन्नोवाली वाले छप्पड़ है, उन दोनों को थोड़ा डूंगा करवा के, एक तो खत्म हो गया सर छप्पड़, एक बड़ा भी है, एक पीछे पड़ा, जो उसका है उसको ठीक करवाए। वो इंजन से पानी उसमें पंप आउट करें, कुछ पानी उसमें जाके सूख जाया करेगा, कुछ पानी जिम्मेदार भी ले लेते हैं, कुछ पानी दुकोए में आ जाए, तो दोनों तरह का काम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 2007 से पहले जब सीवर वहाँ नहीं था, मैं वहाँ का काउंसलर था, दुकोए का सारा पानी मैं शमशान घाट के छप्पड़ से उठा के इंजन से रेलवे लाइनों की ओर फेंकता रहा। 10 साल लगातार मैंने पानी उसमें फेंका, 10 साल लगातार। कभी दुकोए में सीवर की कंप्लेंट नहीं आई। जिस दिन से धन्नोवाली वाला डाला है सीवर, उस दिन से कंप्लेंट शुरू हो गई है। मेरा भी एक बार मन बड़ा दुखी हुआ, आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने वहाँ अपना दफ्तर बना लिया था, बना के वहाँ मेरा पुतला बना के फूंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब तो भैया 2 साल हो गए हैं, आम आदमी पार्टी का राज है, अब तो तुम सुधारो इनको। अगर मेरे से ठीक नहीं हुआ तो आप तो ठीक करो ना इसको, आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, आप इसको ठीक कर दो। और मैं आपके साथ हूँ, जैसा मेरी ड्यूटी जो आप लगाएंगे, मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको बताऊंगा भी कहाँ कहाँ त्रुटियाँ हैं, कैसे ठीक हो सकता है, मैं बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, देश का काम है, समाज का काम है, सारे शहर का काम है। तो हम रल मिल के करेंगे, ये थोड़ी ना कि आपकी पार्टी हो रहा मेरी पार्टी हो रहा, नहीं, पार्टी कोई नहीं, पार्टी आती है रहती जाती रहती हैं, तो सेवा करना है, मकसद है सेवा करना। और मैं शुरू से करता आ रहा हूँ। मैं आज भी रमन अरोड़ा जी से बेनती करूँगा, जब भी मेरी सेवा चाहें मैं आ जाऊँगा, हाजिर हो जाऊँगा और करूँगा। और इस सेवर का हल करना ही करना है, नहीं तो ये सदा के लिए गंदगी जो आज रोड पे फैली हुई है, तो मेरा तो वो 50 लाख रुपए जो लगा वो भी ज़ाया हो गया। जब मैंने बनाया था लोगों ने बड़ी तारीफ़ करी थी भी आपने फर्श डाल के कमाल कर दिया, कोई मुझे सम्मानित करता था, कोई मुझे कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। लेकिन आज शायद लोग मुझे भी गालियाँ निकालते होंगे, क्यों कि मैं काउंसलर था। जब तक मैं काउंसलर रहा हूँ तब तक पानी बाहर नहीं आया। जैसे मेरी काउंसलरशिप ख़त्म हुई है तो पानी की पानी, पानी 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 पानी। अब ये समस्या का हल तो मिलजुल के ही हो सकता है। ऑफिसरों को बुलाएं, मुझे भी बुलाएं, मैं बैठूंगा, सारी बात बताऊंगा। कई बार देखो एमएलए होते हैं, बड़े लोग होते हैं, इनको नहीं पता होता कि छोटे जो काम है कैसे काम होने हैं। तो हमारे भाई की तरह हैं, हम पूरा काम करेंगे, सहयोग देंगे, पार्टी का सहयोग देंगे, काम भी करेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसका हल हो सकता है। दोस्तों ये थे गग साहब, जिन्होंने हमें जो सीवरेज की समस्या है इसका समाधान के बारे में बताया।
अगर इनके कहे अनुसार चला जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या नहीं है, समस्या का आसानी से समाधान निकल सकता है। कारपोरेशन को चाहिए कि अपने इनके मार्गदर्शन में ही कोई टीम गठित कर दें जो कि सर्वे करने के बाद बिल्कुल इसका हल निकाले इस बात का।